Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your lesson of computer science. As you can see the screen, so this is your lesson of computer science, and today we are going to learn an important and new topic, that is bold, italic and underline. So as you all know that in the previous lesson you were doing the practice of typing, how we can type different words, different sentences. So now we are going to learn how we can apply different fonts on the typing. Is it clear? Okay, so for that purpose I will open Microsoft Word. So can anyone tell me the use of Microsoft Word? Hania, can you tell me what is the basic purpose of using Microsoft Word? Right, Microsoft Word is basically used if you want to type some documents. If you want to type documents, that means कि अगर आपने कोई स्टोरी टाइप करनी है, कोई लेटर टाइप करना है या कोई पोइम टाइप करनी है, then simply with the help of Microsoft Word उसमें आप easily टाइपिंग कर सकते हैं. Is it clear? इसके अलावा आपने अभी तक पेंट प्रोग्राम में ड्राइंग की होगी क्लास 1 में. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन type different words, different sentences, and how we can apply font on those sentences. For that purpose I'm going to open Microsoft Word. Moise, can you tell me what are the steps to open Microsoft Word? Right, you have to click on the start button, all programs, Microsoft Office, and then here Microsoft Word. Here you have to click on Microsoft Word. Is it clear? Okay, so Microsoft Word. So as you all know that the basic function of using Microsoft Word is how we can create documents. हम documents कैसे create कर सकते हैं? Documents मतलब अगर आपने कोई story टाइप करनी है, कोई poem टाइप करनी है, कोई letter टाइप करना है, so that is known as your document. Is it clear? Okay, so I will open this previously file. So as you can see the title on the screen, that is bold, italic and underline. अब bold क्या होता है, what is italic and what is underline? So can anyone tell me what is the basic meaning of this word bold? Sarim, can you tell me? Right, it's very easy. Simply what you have to do, आपने क्या करना है, for example let me type here, I will type here Faizan and Abdullah. Is it clear? I have typed here two names. The first one is Faizan and the second one is Abdullah. So bold का क्या मतलब है? अब मैंने यहाँ पर अपना टाइटल दिया टॉप पर, दैट इज बोल्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड? राइट, बोल्ड का मतलब है कि अगर आपने अपने किसी पॉइंट को, किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है या उसको मोटा करना है ताकि वो प्रोमिनेंट हो आपकी बुक पर भी, या आप टाइपिंग कर रहे हैं उस टाइम, सो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आपने अपने डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है. हाउ यू कैन सिलेक्ट योर डाटा? सिंपली क्लिक हेयर, ये जो आपके पास कर्सर है, यू हैव टू क्लिक हेयर एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट बैकवर्ड, पीछे की तरफ बैकवर्ड सिलेक्ट कर लें, या आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और देयर इज वन मोर मेथड, व्हेन यू विल डबल क्लिक, जब आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे अपनी इस लाइन पे, सो योर कंप्लीट लाइन विल बी सिलेक्टेड. इज इट क्लियर? Okay, so now you have to click on this option of B. As you can see, bold. Make the selected text bold. ये इसको bold कर देगा, एक तरह से जो आपका text होगा, जो words होंगे उसे मोटा कर देगा, highlight कर देगा. So when I will click on this option of bold, as you can see, अब जो मेरा text था वो bold हो चुका है. So let's see the difference. मैंने unbold कर दिया,
सिर्फ मैं फिजान को सिलेक्ट करूंगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ बोल्ड. सो नाउ कैन यू फाइंड द डिफरेंस? फिजान इस वक्त जो वर्ड मैंने टाइप किया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड. ये बोल्ड है और जो अब्दुल्ला है वो उसको मैंने बोल्ड नहीं किया, वो सिंपल टेक्स्ट है मेरे पास. दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट. इज इट क्लियर? सो बोल्ड करने का मतलब है आपके पास, अगर आपके पास कोई बुक है उसमें आप किसी सेंटेंस को बोल्ड करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स इफ यू वांट टू मेक इट लुक बिगर then you can simply use this tool that is bold. What you have to do, just click select करना है अपने टॉपिक को, अपने वर्ड को, and then you have to click on this option of bold with B. आपके पास लेटर B होगा आपकी स्क्रीन पर. Simply just have to click on this letter of B. Okay, there is one more short form. Now let's see how we can do italic. So for italic, अब italic क्या होता है और उसको हम कैसे कर सकते हैं? So I will type here हानिया and Urva. So now I have typed here two words. The first one is Hania and the second one is Urva. Is it clear? ओके, सो अब हम अपना सेकंड पॉइंट अप्लाई करेंगे दैट इज इटैलिक. अब इटैलिक क्या होता है और हम इटैलिक किस तरह से कर सकते हैं? सो राइट, व्हाट वी हैव टू डू, आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है. लाइक आई विल जस्ट सिलेक्ट वन वर्ड. ठीक है, मैंने एक वर्ड सिलेक्ट किया एंड देन इस पर हम इटैलिक फॉन्ट अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सी द डिफरेंस कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो आई विल सिलेक्ट द वर्ड अगेन हानिया. यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक एनी बिटवीन दिस वर्ड. आप इसी वर्ड के दरमियान कहीं भी डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. देन एज यू कैन सी कि बोल्ड के साथ एक ऑप्शन है विद द नेम ऑफ आई. अब इस आई का मतलब है इटैलिक. इज इट क्लियर? आई का मतलब है इटैलिक. नाउ अगर हम इटैलिक करेंगे तो उससे क्या चेंज आएगा मेरी स्क्रीन पे या मेरे वर्ड में? हमजा, कैन यू टेल मी? राइट, इससे क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक इफ यू वांट टू प्रोवाइड सम स्टाइल और इफ यू वांट टू ऐड अ काइंड ऑफ टिल्ट योर टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट को टिल्ट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा वो टेढ़ा नजर आएगा आपको. ठीक है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ आई दैट इज इटैलिक. सो नाउ एज यू कैन सी द डिफरेंस. हानिया मेरे पास इस वक्त इटैलिक फॉर्म में है एंड उर्वा इज नॉन इटैलिक. ठीक है, सो ये थोड़ा आपको टिल्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है या जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, और जो उर्वा है वो स्ट्रेट आपको सिंपल टेक्स्ट नज़र आ रहा है. इज इट क्लियर? सो बोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको मोटा कर सकते हैं. इटैलिक से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू विद इटैलिक, हम अपने टेक्स्ट में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं या जो भी उसकी शेप है आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं. Is it clear? And then at the end we have the third point that is underline. Now what do you mean by underline? अब underline का क्या मतलब है? Right, underline का मतलब है कि आपने अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लगा देनी है. एज यू कैन सी कि इस वक्त आपके पास कहीं स्क्रीन पे जो भी मैंने टाइप किया है उसमें कहीं कोई ऐसा वर्ड है जो कि अंडरलाइन है. कैन यू फाइंड इट क्लास? फातिमा, कैन यू टेल मी? राइट, एज यू कैन सी ये कंप्लीट सेंटेंस मेरे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन फॉर्म में है. देन सिंपली आई विल टाइप हेयर अ न्यू वर्ड. आई विल टाइप हेयर रमीन haram. Okay, so now I have typed here two more words, Ramin and Umme Haram. So now what does it mean? अब जब हम इसको इटैलिक करेंगे तो इससे क्या होगा? So simply what you have to do, I will just select my word that is Ramin. मैंने रमीन को select किया and here on the screen as you can see there is one more option with the name of you. So you पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो अंडरलाइन हो जाएगा as you can see. So इस तरह से
So in this way, if you want to make some word italic, then simply you can use this function, that is your underline. So अगर आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है, दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ bold, italic and underline in Microsoft Word. Is it clear? So now we will do the practice one more time. I will type here some names and now we are going to do with the help of shortcut keys. अब हम ये सारा bold, italic और underline shortcut keys की मदद से कैसे कर सकते हैं, let's see. So अब मैं कुछ वर्ड्स टाइप करने की बजाय आई विल इंसर्ट अ पैराग्राफ. मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट करूँगी बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है. सो अगर हमने डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट फंक्शंस को या टूल्स को टेस्ट करना है कि इसको अप्लाई करने से क्या होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई करने से क्या होगा, सिंपली आई विल जस्ट इंसर्ट अ पैराग्राफ इन माई डॉक्यूमेंट. अब पैराग्राफ इंसर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, आप चाहें तो आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं. लाइक आप यू कैन टाइप माई सेल्फ, like my name is Ali, I read in class 2, my favorite book is this, my favorite subject is this. You can type multiple sentences और इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग है वो भी इंक्रीज होगी. सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ पैराग्राफ. पैराग्राफ इंसर्ट करने का फॉर्मूला है द सिंबल ऑफ इक्वल. ये इक्वल का सिंबल है, साइन है, RAND, रैंड, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज. ये इसमें मैंने किसी भी किस्म की कोई स्पेस नहीं दी है. इज इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन और इधर भी स्पेस नहीं है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है. ये ब्रैकेट आपके पास जो आपके नंबर्स हैं वहाँ मिलेंगे. लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. सो एज यू कैन सी दिस इज द ब्रैकेट which I'm using, not this one. This is basically your circle bracket, you can say. I'm not using this rectangle और curly bracket. मैं ये दूसरी brackets यूज़ नहीं कर रही हूँ. मैं ये जो numbers के ऊपर brackets हैं, 9 के ऊपर bracket है and this one is 0 के ऊपर जो bracket है. Simply I will use these brackets. Let's type one more time. I will erase it. Equal का symbol, ये आपके पास equal का symbol है. Equal का symbol RAND, रैंड. फिर अब आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है. अगर इस ब्रैकेट को सिंबल को टाइप करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है और इस 9 को प्रेस कर देंगे. अब आपके पास जो नंबर की है, सो ऊपर वाला सिंबल ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा. देन अगेन शिफ्ट को प्रेस करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रेस दिस की 0 को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला सिंबल टाइप हो जाएगा. आई होप यू हैव स्टडीड व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज कीज़. स्पेशल कीज़ मेरे पास क्या होती हैं और हम ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं इनको हम कैसे टाइप कर सकते हैं. वी कैन टाइप दी सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की. आपके पास अगर कुछ कीज़ ऐसी हैं जिसमें दो सिंबल्स आ रहे हैं, एज यू कैन सी कि यहाँ पर कोमा भी है और लेस देन का सिंबल है, यहाँ पर भी एक लाइन है, स्लैश है और ये क्वेश्चन मार्क है. सो ये जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं, यहाँ पर इक्वल का सिंबल है और ऊपर प्लस है. ठीक है. सो इनको टाइप करने के लिए जो ऊपर वाले सिंबल्स हैं, सिंपली वी यूज शिफ्ट की. आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है एंड देन यू हैव टू प्रेस योर की. इज इट क्लियर? सो सिंपली मैंने अपना ये फॉर्मूला इंसर्ट किया है एंड देन आई विल जस्ट प्रेस एंटर. आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है. यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ स्पेस. सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास पैराग्राफ इंसर्ट होगा आपकी स्क्रीन पर. इफ़ यू वांट टू मेक इट लुक स्मॉलर देन यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द साइज. So now we are going to see how we can apply bold, italic, underline on these paragraphs. So Fatma, can you tell me what is the first step if I want to make the first paragraph in the form of bold? अगर मैंने पहले पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट, इट्स वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ. आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ बोल्ड. इज इट क्लियर? सिमिलरली सेलेक्ट योर सेकंड पैराग्राफ, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ इटैलिक. अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, बोल्ड में आपका जो टेक्स्ट है वो मोटा मोटा नज़र आ रहा है और जो इटैलिक में वो थोड़ा टेढ़ा और स्टाइल की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है. देन एट द एंड इन द फॉर्म ऑफ
underline, just again select your paragraph, click on this option of underline. So आपका जितना भी टेक्स्ट है वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो चुका है. सो एज यू ऑल नो दैट देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ कॉपी और बुक. कंप्यूटर का कोई भी रिटन वर्क नहीं है. आपने बस जो भी टूल्स या जो भी फीचर्स मैं दूंगी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने कंप्यूटर में. अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस इन योर कंप्यूटर. नाउ सिंपली डू द प्रैक्टिस हाउ वी कैन अप्लाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस तरह से कर सकते हैं. इसके अलावा आपके कीबोर्ड पर एक की है कंट्रोल के नेम से, आपने इसको सिलेक्ट करना है. लाइक इफ आई विल डू दिस, हम शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं. सिलेक्ट योर पैराग्राफ. आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल के नेम से एक की है. इफ़ आई विल ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पर एक कंट्रोल के नेम से एज यू कैन सी देयर इज़ अ की. इसको आपने प्रेस करके रखना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन बी. तो जैसे ही आप बी पर क्लिक करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा. सिमिलरली सिलेक्ट योर नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रेस कंट्रोल एंड प्रेस आई. तो आई से मतलब इटैलिक हो जाएगा, बी फॉर बोल्ड. एंड देन एट द एंड सिलेक्ट योर थर्ड पैराग्राफ, click on the control key and click here U. So simply in this lesson you just have to do the practice how we can apply bold, italic and underline. bold, italic और underline हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. So if you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.